Hello everyone and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we will going to study about acidulant part 1. So in this topic we will going to study about what are acidulant, why they are used in carbonated soft drinks, and what is the benefit of using acidulant in the manufacturing of any carbonated soft drinks. So let's get started with the topic. Acidulants are essential part of beverage formation with the acid component usually third in order of concentration. Acidity has a variety of functions in addition to its primary thirst quenching properties, which are the result of stimulation of saliva flow in the mouth. Because of its consequent reduction in pH, an acidulant can act as a mild preservative in some respect as flavor enhancer depending on other component present. In addition, by functioning as a serologist to an antioxidant such as BHA, BHT, and ascorbic acid, acidulants can indirectly prevent decolorization and rancidity. So acidulants क्या है? So acidulant is nothing but it is a type of a chemical compound जो किसी भी बेवरेज को टार्ट, सॉर और एसिडिक फ्लेवर देता है. साथ ही साथ इसका एसिडुलेंट के पास एक लेवनिंग मतलब इट एक्ट एज अ लेवनिंग एजेंट ऑल्सो, और ये एक एक्ट करता है एज अ इमल्सिफायर ऑल्सो. सो इट हैज़ बेसिकली two main properties, that is why they are used in the beverage industry. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ये एक एसिडिक फ्लेवर देता है. सेकेंड है कि इट एक्ट एज अ इमल्सिफायर एंड हैज़ एंड एक्ट एज अ लेवनिंग एजेंट. सो जनरली इस पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एसिडुलेंट आर यूज्ड इन कोला टाइप्स ऑफ बेवरेजेस. तो कोला टाइप की जो बेवरेजेस हैं उसमें मेनली एसिडुलेंट क्यों यूज़ होता है? तो जो फॉस्फोरिक एसिड होती है जिसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इन कोला, ये क्या करता है, ये एक टेस्ट प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है पीएच में. तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, जो मोस्टली फ्रूटी कूलर्स होते हैं या जिनमें लो अल्कोहल ड्रिंक्स होते हैं जिसमें मैलिक एसिड इज यूजुअली used. So this is why the acidulants are used in beverage industry. Second है कि they act as a they prevent decolorization and rancidity. इसमें कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हैं जैसे BHA है, दैट इज़ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, या BHT है, दैट इज़ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन है, या एस्कॉर्बिक एसिड है. ये क्या करता है, ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डीकलराइजेशन एंड रेंसिडिटी, जो कि बेवरेज को प्रिवेंट करती है फ्रॉम डीकलराइजेशन एंड रेंसिडिटी. सेकेंड इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसमें क्या होता है, जो इसका पीएच रिडक्शन होता है, कॉन्सिक्वेंट पीएच का रिडक्शन होता है, तो ये बहुत ही एक्ट करता है एज अ माइल्ड प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर को इन्हेंस करता है डिपेंडिंग कि उसमें क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है. तो जब भी कोई भी एसिडुलेंट हमारी कोई सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेजेंट है तो दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, मतलब बेवरेज को प्रिजर्व करता है, एक्सटेंड करता है उसकी शेल्फ लाइफ में, साथ ही साथ उसके बेवरेज के फ्लेवर को इन्हेंस करता है और कुछ टार्ट, सॉर, बिटर टेस्ट हमारे बेवरेज को देता है. देन कम्स दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एसिडुलेंट्स दैट आर यूज्ड. अब हमें देखना है कि कौन कौन से वो एसिडुलेंट्स हैं that they are used in beverage industry. So there are different types of acidulants that are used in beverage industries. So the first is citric acid, second is tartric acid, third is phosphoric acid, and
in the next lecture we will see different other types of acidulants. So let's talk about each acidulant in detail. The first is citric acid. Citric acid is the most commonly used acid in fruit flavored beverages. It has a highly fruity character that blends well with the most fruit flavor, which is to be expected as it occurs naturally in many fruits. Unripe lemons contain 5 to 8% citric acid. It is also the principal acidic constituent of a currant and cranberries and is associated with malic acid in apples, apricots, blueberries, cherries, gooseberries, loganberries, peaches, plum, pear, strawberries and raspberry. So सिट्रिक एसिड क्या है? जो सिट्रिक एसिड है ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड एसिड है जो कि हमारी फ्रूट फ्लेवर्ड बेवरेजेस में मेनली यूज्ड होता है या प्रेजेंट यूज्ड होता है. इसका इसका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही लाइट फ्रूटी कैरेक्टर का होता है और ये किसी भी फ्रूट बेवरेज के साथ ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं. और इसको जैसे ही जब कोई भी बेवरेज के साथ ये ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं तो उसको बहुत ही नेचुरल सा फ्रूटी टाइप का फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं. जैसे अनराइप लेमन है जिसमें 5 to 8% सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. सो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसकी जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है सिट्रिक एसिड के वो हैं जैसे कैनबेरीज हो गया या मतलब करंट हो गया, कॉर्क्यूरेंट हो गया. सेकेंड है इसमें कई डिफरेंट टाइप्स के जैसे एप्पल्स की बात करें तो इसमें मैलिक एसिड इज प्रेजेंट, एप्रिकॉट्स, ब्लूबेरीज. सो दीज आर सर्टेन एसिडिक कॉन्स्टिट्यूएंट that are associated with different types of acid. Then comes कि जो सिट्रिक एसिड है वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम लेमन, लाइम्स. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रिक एसिड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, वेदर वो लाइम्स हो, वेदर वो लेमन्स हो, ऑरेंजेस हो, माल्टा हो. तो जितने टाइप्स के सिट्रस फ्रूट्स होंगे उसमें सिट्रिक एसिड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. उसके बाद क्या है कि it is now produced by the action of enzyme on glucose and other sugars. तो अगर नेचुरली अगर देखा जाए तो सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट है बट इसको आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो. हाउ? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स. जो सिट्रिक एसिड होती है इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर आप सिट्रिक एसिड को देखो तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इट कैन बी परचेज्ड एज अ ग्रैनुलर पाउडर इन इट्स एनहाइड्रस स्टेट और एज अ मोनोहाइड्रेट. तो सिट्रिक एसिड एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इसको आप ग्रैनुलर पाउडर के फॉर्म में भी परचेज करते हो. वो किस फॉर्म में स्टेट में होता है? एनहाइड्रस स्टेट में होता है एज अ मोनोहाइड्रेट. अब प्रेजेंट डे की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर्मुलेशन यूजुअली एम्प्लॉय द एनहाइड्रस फॉर्म विच हैज़ अ कॉस्ट इन यूज एडवांटेजेस ओवर अ ट्रेडिशनल यूज्ड मोनोहाइड्रेट. सो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, प्रेजेंट मार्केट्स की बात करें तो जो सिट्रिक एसिड है ये एनहाइड्रस फॉर्म में दे आर मेनली यूज्ड और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो वहाँ पर मोनोहाइड्रेट फॉर्म में यूज़ होता था सिट्रिक एसिड. बट नाउ डेज इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो सिट्रिक एसिड है ये एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ होता है जो कि ये ग्रैनुलर पाउडर होता है इन इट्स एनहाइड्रस स्टेट. सो citric acid, these product have citric acid. जैसे कि 99% of citric acid is manufactured from fermentation of black mold. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो 99% ऑफ सिट्रिक एसिड होता है ये फर्मेंटेशन से मैन्युफैक्चर्ड होता है. किसके फर्मेंटेशन से? फर्मेंटेशन ऑफ ब्लैक मोल्ड. So there are different types of products. You all are familiar with these products जैसे Mountain Dew, Red Bulls हो गए. तो these all have the content of citric acid. Second, before starting with tartaric acid, there are different types of question. एक क्वेश्चन अराइज होता है why citric acid is used in soft drinks.
तो because citric acid has a sour tasting nature, citric acid is used as a flavoring and preserving agent. तो इस citric acid has two main property. सबसे पहले ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, सेकेंड प्रिजर्विंग एजेंट के लिए यूज़ करा जाता है, स्पेशली जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कैंडीज़ होते हैं. और इसके इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टेबलाइज और प्रिजर्व, स्टेबलाइज करता है या प्रिजर्व करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमन जूसेस ऑल्सो. सो दिस इज़ द रीज़न वाई सिट्रिक एसिड आर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो द फर्स्ट इज ये सॉर टेस्टिंग नेचर होता है, दैट इज़ द रीज़न, सॉर टेस्टिंग या एसिडिक नेचर होता है. सेकेंड है इसका फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है एज वेल एज प्रिजर्वेटिव्स के प्रिजर्विंग एजेंट्स की तरह भी ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है. नाउ मूविंग टू टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, वाई टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री. नाउ वी विल गोइंग टू सी कि द यूज ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेवरेज इंडस्ट्रीज. सो सबसे पहले है कि टार्ट्रिक एसिड क्या होता है. तो टार्ट्रिक एसिड अकर्स naturally in grapes as the acid potassium salt. Tartric acid is also a natural component of numerous other fruits such as currant, blackberries and cranberries. Tartric acid can be obtained in four forms: dextro, levo, meso and the mixed isomer equilibrium or racemic form. Commercially, it is usually available as dextro-tartric acid. It has a sharper flavor than citric acid and may therefore be used at slightly lower level to give equivalent palate acidity. So what are tartric acid? So tartric acid एक naturally ये grapes में present होता है, किस form में, as a acid potassium salt. Second है कि जो tartric acid होता है इट हैज़ अ न्यूमरस नेचुरल कंपोनेंट जो कि हमारे ब्लैकबेरीज या क्रैनबेरीज में प्रेजेंट होता है. सेकेंड है कि जो टार्ट्रिक एसिड है ये हम ऑब्टेन होता है इन द फोर फॉर्म, दैट इज़ डेक्स्ट्रो, लेवो, मीसो, मिक्स्ड आइसोमर इक्विलिब्रियम और रेसिमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये यूजुअली जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें यूजुअली अवेलेबल होता है एज डेक्स्ट्रो टार्ट्रिक एसिड. इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू सिट्रिक एसिड और ये बहुत ही पैलेट एसिडिटी देता है किसी भी बेवरेज को. सो टार्ट्रिक एसिड की हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टार्ट टेस्ट और ये naturally present होता है in grapes in the form of acid potassium salt. So अब टार्ट्रिक एसिड हमारे ड्रिंक्स में कैसे यूज़ होता है कि टार्ट्रिक एसिड जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, ये किसी भी ड्रिंक के फ्लेवर को इन्हांस करता है, उसको प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ ये बेवरेज को एक एक्स्ट्रा टैंजी फ्लेवर प्रोवाइड करता है. दैट इज़ द रीज़न दिस टार्ट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन beverage industry. So tartric acid, that is dextro form, is a white crystalline solid with melting point 171 to 174 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो टार्ट्रिक एसिड है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 171 टू 174 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. टार्ट्रिक एसिड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग tart taste and it complements natural and synthetic fruit flavor, especially grapes and cranberries. तो ये बहुत ही इसका जो फ्लेवर होता है ये बहुत ही ज़्यादा टार्ट फ्लेवर होता है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. For use in beverage, tartric acid must be perfectly pure and guaranteed for the food use. तो it is a very essential कि जब भी आप टार्ट्रिक एसिड को बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो तो इट शुड बी परफेक्टली प्योर होना चाहिए बिफोर
using in the beverage industries. One problem that may need to address is that tartric acid salt, particularly the calcium and magnesium tarts, have lower solubility than citric acid. तो जैसे जो हमारे टार्ट्रिक एसिड्स हैं, तो इसमें जो मेनली सॉल्ट हैं जो कि कैल्शियम है और आपके मैग्नीशियम है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिट्रिक एसिड. देन अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टार्ट. टार्टेट का फंक्शन क्या होता है. तो टार्टेट का द मेन फॉर्म ऑफ टार्टेट यूज्ड कमर्शियली, ये एक प्योर क्रिस्टलाइन टार्ट्रिक एसिड होता है जो कि यूज्ड होता है ऐसा एसिड्यूलेंट इन नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स. जितने भी नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं मेनली वहाँ पर यूज़ होता है. इसमें एक सॉल्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉथशेल्ड सॉल्ट, और ये हमारी क्या होता है, ये किसी भी सोल्यूशन के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ होता है. इसका एक एडिशनल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टार्ट्रिक एसिड. तो अदर नेम ऑफ टार्ट्रिक एसिड इज डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और ये सबसे ज़्यादा मतलब वाइडली यूज्ड एसिड है और इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस हैं. देन ये एसिडुलेंट्स हैं जो कि हमारे बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में यूज हो रहा है. तो टाइप ऑफ एसिड जैसे सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड कितना यूज़ होता है 3.24, ये pH है सिट्रिक एसिड का. मैलिक एसिड है 3.8 pH, टार्ट्रिक एसिड 3.4, फॉस्फोरिक एसिड 3.06, एसिटिक एसिड 3.91 और लैक्टिक एसिड इज 3.51, फ्यूमरिक एसिड इज 3.2 and ascorbic acid at the last has a pH of 2.8. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर सारी एसिड्स हैं जो कि हमारी बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में यूज होती हैं, और हर एक एसिड का क्या pH है वो इस टेबल में मेंशन है. देन कम्स द फॉस्फोरिक एसिड. अगेन फॉस्फोरिक एसिड क्या होती है, जो फॉस्फोरिक एसिड इज़ द ओनली इनऑर्गेनिक एसिड टू बी वाइडली यूज्ड इन फूड प्रेपरेशन एज एन एसिड्यूलेंट. It does, however, can occur naturally in the form of phosphate in some fruits, for example, limes and grapes. In soft drink industry, its use is confined almost entirely to cola flavored carbonated, where it is especially types of astringent acidity complement the dry, sometimes balsamic character of cola drinks. So अब आता है क्वेश्चन कि what is phosphoric acid. phosphoric acid तो क्यों यूज़ होता है हमारी इंडस्ट्री में, फॉस्फोरिक एसिड क्यों यूज होता है इन दी बेवरेज इंडस्ट्री. तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि मेनली एक्ट करती है एज अ एसिड्यूलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स. सिमिलरली इसकी क्या फंक्शन है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक टैंजी फ्लेवर देती है, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करती है किसके ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, मेनली मोल्ड एंड बैक्टीरिया, इसके ग्रोथ को ये प्रिवेंट करती है. ये किसी भी बेवरेज को, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को टेस्ट प्रोवाइड करती है. जो कोको कोला यूरोपियन पार्टनर्स हैं, तो ये बहुत ही कम अमाउंट में मेनली फॉस्फोरिक एसिड्स हमारे यूज़ करते हैं ड्रिंक्स में. और जो फॉस्फोरिक एसिड है, अगर हम मेनली बात करें तो ये जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं या समटाइम्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या टीज़ होती हैं, उसमें हम फॉस्फोरस ऐड करते हैं जो कि किसी भी बेवरेज को टेस्ट देती है. सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या फॉस्फोरिक एसिड सेफ़ है टू ड्रिंक. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखें, दैट इज़ FDA, तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो जनरली सेफ़ है इन यूज़. बट हाँ, अगर आप एक्सेसेस में फॉस्फोरस ले रहे हो,
तो वो आपके हार्ट को, किडनी में को और बोन्स को हार्म पहुंचा सकती है। तो कोई भी, ये तो है कि कोई भी एसिड हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, जब भी आप कभी एक्सेस फॉर्म में लेते हो तो ऑब्वियसली इट हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट ऑन दी हेल्थ। सो फॉस्फोरिक एसिड, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि क्या स्प्राइट जो ड्रिंक है उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि वो भी एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है। तो फॉस्फोरिक एसिड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है, वाई, जस्ट टू प्रोवाइड द टेस्ट एज वेल एज उसमें जो इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी को। देन जो प्योर फॉस्फोरिक एसिड होती है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, ठीक है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 42.35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसकी जो कमर्शियली अवेलेबल होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 75, 80 एंड 90%। The syrupy nature of the solution occurs at a concentration greater than 50% and is result of hydrogen bonding between phosphoric acid molecule. तो जो phosphoric acid है ये corrosive है, और corrosive है, rubber lined steel उसमें होता है। So ये मतलब कि they are mainly used. Then we are in the end of this lecture, but before ending the lecture let us discuss the different types of question that can be asked in the exams. So exams basically they will ask you about the acidulant, ki what is acidulant, why acidulants are used in beverage industries. They will ask you the full form of antioxidants such as BHA, BHT, कि what is the use of BHA, BHT and ascorbic acid in the beverage industries, क्या है इनके uses. So they basically prevent decolorization and rancidity को prevent करता है. Second question generally arise होता है कि what is the use of citric acid, why citric acids are used, what are the properties of citric acid, citric acid की क्या properties हैं, citric acid किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर्मुलेशन की हम बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है और वो ट्रेडिशनली किस फॉर्म में प्रेजेंट था. Then 99% of citric acid is manufactured from where? So they are manufactured from fermentation of black mold. Then they will ask you the same question with tartaric acid कि भाई what is the function of tartaric acid, किस fruit में tartaric acid occurs, grapes में. Tartaric acid किस is obtained from which 4 forms, that is dextro, levino, meso and mixed isomer equilibrium. और कमर्शियली कैसी अवेलेबल है, तो दे आर अवेलेबल एज डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड. सेकेंड है दे विल आस्क यू अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टार्टरिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या है. सेकेंड दिस टेबल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हियर डिफरेंट एसिड्स आर देयर एंड हर एक एसिड का क्या पीएच है, कितना पीएच इज़ यूज्ड in the beverage industry, that is placed here. Then they will ask you about the phosphoric acid. Is it safe to use phosphoric acid? What is the function of phosphoric acid? Why phosphoric acids are used in beverage industries apart from मतलब कि enhancing the taste and adding flavor to the beverage any soft drinks. So why they are used? So the main function is they have a property of inhibiting the growth of any microorganism, for example bacteria and mold especially. So what is the colorless of pure phosphoric acid? तो the color is they are colorless. melting point कितना होता है, they will ask you about the melting point of the phosphoric acid. So this is all the types of question that can be asked in the exams.
So in the next lecture, in the part 2, we will going to continue with the types of acids, other types of acids that are used in beverage industries. So thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number. You can reach to our helpline number for any difficulties. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.